آپ دیکھ رہے ہیں شبیر تو دیکھے گا اور میں ہوں پارس مسرور۔ وہ پیسے میں نے اس پروجیکٹ میں انویسٹ کر دیے ہیں، انشاءاللہ 1 مہینے کے اندر اندر وہ پیسہ تمہیں منافع کے ساتھ وصول ہو جائیں گے۔ ایک پروجیکٹ میں رقم لگانے کے لیے اس نے کچھ دوستوں کو راضی کر لیا تھا۔ 1000 خرچے ان کے، پڑھائی، کتابیں، کپڑا لتا، دوائی دارو، کتنا کچھ کرنا پڑتا ہے، کیسے ہوگا سب کچھ؟ ہو جائے گا میں نے کہا نا۔ لیکن کیسے ہو جائے گا؟ فواد کو کاروبار میں بہت بڑا دھچکا لگ چکا تھا۔ کوئی بھی میرے بارے میں آ کے پوچھتا نا، اسے بولو کہ 15 سے 20 دن کے لیے مجھ سے باہر گیا۔ شمسی کالونی میں شوہر کے ہاتھوں بیوی اور بیٹیوں کے مبینہ قتل کے بعد علاقے میں کوہرام مچ گیا تھا۔ کیا یہ تصور کیا جا سکتا ہے کہ کوئی باپ اور پڑھا لکھا معقول باپ اپنی پیاری پیاری بیٹیوں کو قتل کر سکتا ہے، بیوی کے گلے پر چھری پھیر سکتا ہے؟ لیکن بدقسمتی سے ایسا ہی ایک ہولناک اور صفاقانہ واقعہ گزشتہ دنوں کراچی کی شمسی کالونی میں پیش آیا، جہاں باپ پر بیوی بیٹیوں کے مبینہ قتل کا الزام ہے۔ میں ہوں پارس مسرور اور آپ دیکھ رہے ہیں کوئی دیکھے نہ دیکھے شبیر تو دیکھے گا۔ ماں بیٹیوں کے صفاقانہ قتل کی خبر سن کر جب شبیر شمسی سوسائٹی پہنچا تو لوگوں کا جم غفیر لگا ہوا تھا۔ پولیس اور رضاکار موجود تھے۔ سجا سجایا کمرہ خون کا تالاب سا بنا ہوا تھا۔ رضاکار مقتولین کے مردہ جسموں کو ڈھانپ کر ایمبولینس میں منتقل کرنے کے لیے سیڑھیاں اترتے دکھائی دیے۔ یہ ایسا ہولناک اور دل دہلا دینے والا منظر تھا کہ شبیر کی روح کانپ اٹھی۔ یہ ہے وہ گھر جس میں جانے کا ایک ہی راستہ تھا۔ ایک کے بعد ایک ایمبولینس علاقے میں داخل ہو رہی تھی۔ لوگ سکتے کے عالم میں تھے۔ شبیر بھی دم بخود تھا کہ آخر اتنی بڑی قیامت کیسے برپا ہو گئی۔ یہ ہے وہ مناظر جب ماں اور اس کی 3 جوان اور 9 عمر بیٹیوں کو مبینہ طور پر اس کے شوہر نے قتل کر دیا تھا۔ ملیر شمسی سوسائٹی بلاک ڈی میں شوہر فواد نے مبینہ طور پر اپنی بیوی اور 3 بیٹیوں کو تیز دھار آلے سے قتل کرنے کے بعد اپنا گلا کاٹنے کی بھی کوشش کی تھی۔ شبیر اتنے بھیانک اقدام کا سبب جاننے کی کوشش کر رہا تھا۔ جو کچھ شبیر کو پتہ چلا اس کی تمثیل کچھ اس طرح ہے۔ فواد کو اپنی کار میں ایک فیکٹری سے نکلتے دیکھا گیا۔ وہ خاصا پریشان لگ رہا تھا۔ کار چلاتے ہوئے اس نے کسی دوست کو فون کیا۔ ہاں ہیلو، کدھر ہے؟ گھر پر ہے؟ نہیں یار میں ریسٹورنٹ پر ہوں۔ یار سوچا تھا گپ شپ کر لیتے۔ تو ایک کام کرنا، یہیں ریسٹورنٹ پر آ جا، یہیں بیٹھ کے گپ شپ کر لیتے ہیں، چائے بھی پی لیتے ہیں۔ چل ٹھیک ہے، میں تیری طرف آ رہا ہوں۔ اوکے بائے۔ چل ٹھیک ہے۔ فواد نے ایک اچھے سے ہوٹل کے سامنے کار پارک کی اور جب اندر پہنچا تو ایک خوش لباس اور متمول سا دوست اس کا منتظر تھا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے؟ کیسے ہو؟ ٹھیک، تم سناؤ کیسے ہو؟ شکر اللہ کا۔ فواد یو لوکنگ اسمارٹ یار۔ ارے کہاں کا اسمارٹ، ایک پروجیکٹ کرنے کا ارادہ کیا ہے، سوچا تم سے شیئر کر لوں۔ اوہ دیٹ گریٹ یار، کون سا پروجیکٹ ہے؟ شیئر کرو مجھ سے۔ اچھا یہ مجھے بتاؤ، پہلے چائے لوگے یا ٹھنڈا؟ ارے چائے ٹھنڈا سب چلتا رہے گا، پہلے پروجیکٹ کے بارے میں بتاؤ۔ پھر شبیر نے دونوں دوستوں کو کافی دیر تک بحث مباحثہ کرتے، تحقیق لگاتے اور سنجیدگی سے ایک دوسرے کی بات سنتے دیکھا۔ کچھ دیر میں وہ دونوں اپنی اپنی کاروں میں سوار ہو کر اپنے اپنے گھروں کی جانب جاتے دکھائی دیے۔ فواد کے بارے میں پتہ چلا ہے کہ وہ کسی فیکٹری میں سیلز مینیجر تھا۔ معقول تنخواہ تھی، لیکن وہ اپنا ذاتی کاروبار بھی کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ایک پروجیکٹ میں رقم لگانے کے لیے اس نے کچھ دوستوں کو راضی کر لیا تھا۔ شبیر نے دیکھا کہ فواد اپنے 3-4 دولت مند دوستوں کے ساتھ کسی اچھے سے ہوٹل میں موجود تھا اور ٹیبل پر کھانا رکھا ہوا تھا۔ نہیں تھینک یو سو مچ۔ آج دوستوں 2 باتیں، آج کی ٹریٹ ہے نا وہ میری طرف سے۔ ارے فواد بھائی کس خوشی میں؟ ارے بھائی اس خوشی میں جو پیسے تم لوگوں نے مجھے دیے تھے نا، وہ پیسے میں نے پروجیکٹ میں انویسٹ کر دیے ہیں، انشاءاللہ 1 مہینے کے اندر اندر وہ پیسہ تمہیں منافع کے ساتھ وصول ہو جائیں گے۔ اور بھائی پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے۔ ارے فواد بھائی ہم آپ کو جانتے ہیں، تو پریشانی کی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ ارے بھائی میں نے بھی سوچا کہ اب کب تک ہم نوکریاں کرتے رہیں گے اور محدود آمدنی سے گزارا کرتے رہیں گے، تو اللہ بہتر کرے گا۔ نہیں ہم پریشان نہیں ہیں، آپ پہ پورا بھروسہ ہے۔ اور لو نا یار، لو کیا بس تم بھی لو، یہ لو پلیز۔ دوستوں سے پیسے لے کر فواد نے جو کام شروع کیا تھا مبینہ طور پر اس میں خسارہ ہو گیا اور فواد کے ہاتھ پاؤں پھول گئے، کیونکہ اس کے شراکت داروں نے رقم کی واپسی اور منافع کا تقاضا شروع کر دیا تھا۔
फवाद की कारोबारी परेशानी ने उसके घर का सुकून भी आहिस्ता आहिस्ता बर्बाद करना शुरू कर दिया था। एक दिन शब्बीर ने देखा कि फवाद अपनी गली में कार पार्क कर रहा था। फिर उसने चाबी लगाकर गेट खोला और सीढ़ियों के जरिए चलता हुआ अपने कमरे में पहुंचा तो वहां कोई नहीं था। तो उसकी बीवी बावर्ची खाने में थी। कौन? अरे आ गए आप? हाँ, मैं आ गया। इतनी खामोशी से आए, बैल भी नहीं बजाई? चाबी थी मेरे पास, मैं सोचा कहाँ तुम सीढ़ियाँ उतर कर नीचे आओगी। खैर ये बताओ बच्चियाँ कहाँ हैं? बड़ी तो घर पर ही है, बाकी दोनों खाला के घर पे गई हुई हैं। अच्छा क्या हुआ आपके बिजनेस का? चल रहा है। अल्लाह करे चल जाए। तंज कर रही हूँ ना? मैं क्यों तंज करूंगी आप पर? और आप आजकल हर बात पे इतने उखड़े उखड़े क्यों रहते हैं? ये बताएं तनख्वाह का क्या हुआ है? एक सांस में दो सवाल? शायद मुमकिन नहीं कि इस महीने मुझे तनख्वाह मिले। क्या क्या कह रहे हैं आप? बात तीसरा महीना होने को आ रहा है। हद हो गई। कैसे आपकी फैक्ट्री वाले और आप क्या कर रहे हैं? इसीलिए मैंने दोस्तों के साथ मिलकर कारोबार शुरू किया है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आपने क्या काम शुरू किया, किस तरह होगा सब कुछ मैनेज। आपको पता है बच्चियां बड़ी हो रही हैं, 1000 खर्चे हैं उनके, पढ़ाई, किताबें, कपड़ा लत्ता, दवाई दारू, कितना कुछ करना पड़ता है। कैसे होगा सब कुछ? हो जाएगा मैंने कहा ना। लेकिन कैसे हो जाएगा? अच्छा खाना लाओ। मुझे खाना नहीं खाना, मुझे प्लीज अकेला छोड़ दो। सारी जिंदगी के लिए आपको मैं अकेला छोड़ देती हूँ। पता नहीं आपको हो क्या गया है, आप छोटी छोटी बात पर क्यों इतना शोर करने लग जाते हैं? बच्चियां इतनी परेशान है कि बाबा को क्या हो गया है? क्या हो गया है आपके दिमाग को? पागल हो गया, मेरा दिमाग खराब हो गया है। गेट लो, हटो मेरे हाथ से। तो बात क्या हुआ? मम्मा बाबा को क्यों इतना चिल्ला रहे हैं? मुझे नहीं पता, खुद ही जाके पूछ लो। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ रहिएगा, क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। पागल हो गया, मेरा दिमाग खराब हो गया है। गेट लो, हटो मेरे हाथ से। तो बात क्या हुआ? मम्मा बाबा को क्यों इतना चिल्ला रहे हैं? मुझे नहीं पता, खुद ही जाके पूछ लो। अस्सलाम वालेकुम बाबा, आपकी तबीयत ठीक है? वालेकुम बेटा, हाँ ठीक है बेटा। चाय बनाऊं आपके लिए? नहीं बेटा, मुझे चाय नहीं पीनी, बस मैं कुछ देर आराम करना चाहता हूँ। ठीक है बाबा। पता नहीं क्या हो गया है बाबा को। बेटी आहिस्ता से कमरा बंद करके बाहर निकल आई और हैरानी से कुछ सोचने लगी। फवाद को कारोबार में बहुत बड़ा धचका लग चुका था। शिराकतदारों की रकम डूब गई थी और वो रकम की वापसी का मुतालबा कर रहे थे। अब फवाद ने शिराकतदारों से मुंह छुपाना शुरू कर दिया था। फवाद सुबह सवेरे तैयार होकर घर से निकलने की तैयारी कर रहा था कि बीवी ने चाय की प्याली थमा दी। फवाद ने खड़े खड़े चाय पी। वो बहुत उजलत में दिखाई दे रहा था। ये लीजिए। कब तक आएंगे? कुछ पता नहीं, देर हो जाएगी। अच्छा ये बताएं, वो अनवर साहब को आपके जानने वाले? क्यों, क्या हुआ? पता नहीं, वो कह रहे थे कि आपका नंबर बंद था, इसीलिए घर चले आए। क्यों, क्या कह रहा था? कह तो यही रहा था कि बस आप उनसे मुलाकात कर लें। अच्छा मेरी बात आप और से सुनो, कोई भी मेरे बारे में आके पूछता ना, उसे बोलो कि 15 से 20 दिन के लिए मुझसे बाहर गया हुआ। क्या कह रहे हैं? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे भाई, जो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ ना, बस तुम उस पर अमल करो। ये लो चाय का पकड़ो। चाय तो पी। बस पी ली मैंने चाय। क्या हो रहा है? फवाद तेजी से सीढ़ियां उतरता हुआ गेट से बाहर निकला और कार लेकर रवाना हो गया। मुबैना माली दबाव और शिराकतदारों की जानिब से रकम की वापसी के मुतालबे ने फवाद का जीना दूभर कर दिया था। फिर एक रोज शब्बीर को यह भयानक और इंतहाई अलमनाक खबर मिली कि फवाद ने अपनी 42 साला बीवी हुमा
اور 3 بیٹیوں 16 سالہ نیہا، 12 سالہ فاطمہ اور 10 سالہ نمرہ کو مبینہ طور پر ذبح کر کے اپنے گلے پر بھی چھری پھیر لی تھی۔ فواد کو شدید زخمی حالت میں ہسپتال لے جا کر اس کی جان بچانے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ شمسی کالونی میں شوہر کے ہاتھوں بیوی اور بیٹیوں کے مبینہ قتل کے بعد علاقے میں کوہرام مچ گیا تھا۔ مقتولین کی میتیں پوسٹ مارٹم کے بعد فواد کے سسرال منتقل کر دی گئی تھی، جہاں ان کی تدفین کر دی گئی۔ یہ ہیں وہ اندوہناک مناظر جب ماں اور اس کی 3 بیٹیوں کے جنازے تدفین اور نماز جنازہ کے لیے لے جائے جا رہے تھے۔ کیا فواد واقعی معاشی دباؤ کا شکار تھا اور اس میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت باقی نہیں رہی تھی؟ کیا واقعی شوہر نے اپنی بیوی اور 3 بیٹیوں کو قتل کیا تھا؟ ان سوالوں کے جواب ابھی وضاحت سے سامنے نہیں آ سکے ہیں۔ البتہ پولیس نے یہ دعویٰ ضرور کیا ہے کہ ملزم نے قتل کا اعتراف کر لیا ہے اور وجوہات بھی بتائی ہیں۔ ماں اور اس کی 3 غیر شادی شدہ نوجوان پڑھنے لکھنے والی بیٹیوں کی لرزہ خیز ہلاکت پر پورا شہر ہی سوگ میں ڈوب گیا تھا۔ لوگ طرح طرح کی رائے قائم کر رہے تھے۔ نہیں، بہت اچھے سے بچوں کے اوپر جان دیا کرتا تھا، لیکن 3 بجے کے قریب سنائی دی کہ جیسے بچوں کو ڈانٹا پڑتی ہے۔ میں نے فون کرا، اس نے فون نہیں اٹھایا، بات ہی نہیں ہوئی۔ 5 منٹ کے بعد میں پھر دوبارہ میری بڑی بیٹی ہوگی اس کی فون آئی، سنائی دی۔ پھر یہ میری بچی بھی گئی، میں بھی گئی، دیکھا تو دروازہ بند تھا، پیٹ رہے، آوازیں دے رہے، شور بجا رہے، نہیں کھولے۔ پھر دونوں آتے تھے پکڑ کے جو دروازہ دوڑائے کھولا ہے تو وہ بند سے کھلی کھلی گئی۔ جب جا کے دیکھا تو سارے بچے میرے پڑے تھے اور بیان نہیں کر سکتے۔ کیا آپ نے کبھی سنا ہے کہ لڑائی جھگڑے کے بارے میں؟ نہیں، گلی گلی تھی یہ؟ بہت اچھے لوگ تھے، بہت اچھے لوگ۔ رینٹ پہ رہتے تھے یہ لوگ؟ جی رینٹ پہ رہتے، کتنے سے رہ رہے تھے؟ تقریباً 4-5 سال ہو گئے۔ اچھا، کبھی لڑائی جھگڑا سنا تھا؟ نہیں، کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں۔ یہ بندے کیسے تھا جو اس نے واقعہ کیا؟ بہت نائس، بہت اچھے لوگ تھے۔ پتہ نہیں کیسے ہوا یہ، مجھے سمجھ نہیں آیا کہ انہوں نے کیوں کیا۔ فائنینشیل تو ان کو کوئی پرابلم نہیں تھی، لیکن بس ابھی سمجھ نہیں آیا۔ ہمارے تو پڑوسی کے سامنے رہتے تھے، ہم لوگ یہ شفٹ ہوئے تو 1.5 سال بعد وہ ادھر آ گئے۔ پولیس نے اس کیس کے بارے میں جو کچھ بتایا تھا وہ کچھ یوں ہے۔ پہلے وہ انہوں نے اپنی بیگم اور 3 بیٹیوں کو مارا ہے، خود کے ذریعے ذبح کیا بلکہ انفارچونیٹلی، اور اس کے بعد خود کو ذبح کرنے کی ایکسیکیوشن کی کوشش کی ہے، جس میں وہ شدید زخمی ہوئے اور ابھی ان کو ہاسپٹل شفٹ کر دیا گیا ہے۔ شبیر نے کراچی کی شمسی سوسائٹی میں پیش آنے والے قتل کے اس واقعے کی شدید مذمت، افسوس اور دکھ کا اظہار کیا ہے اور مقتولین کی مغفرت کی دعا کی ہے اور کہا ہے کہ خدا کسی کو بھی اس طرح کے دن نہ دکھائے۔ دیکھتے رہیے، کیونکہ کوئی دیکھے نہ دیکھے، شبیر تو دیکھے گا۔ میں سوچ رہا ہوں کہ تمہارے جیسی خوبصورت بیوی ایک اور لے کر آ جاؤں۔ ویسے وہ ہے کون؟ ارے تم جانتی ہو اسے بھائی، وہ اپنی پڑوسن سعیدہ۔ ایک شریف لڑکی جس کی اگلے مہینے شادی ہونے والی ہے، تم اس پر نظر رکھے ہوئے ہو۔ ذیشان کے سر پر سعیدہ سوار تھی، اس کو حاصل کرنے کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتا تھا۔ اس سعیدہ سے شادی سے انکار کر دو۔ وہ کیوں؟ بھابھی وہ ایان نہیں دکھ رہا ہے، ابھی تو یہی تھا۔ شادی کے صرف 3 دن پہلے 5 سالہ ایان، جو سعیدہ کا پیارا سا بھانجا تھا، گھر سے ایسے غائب ہوا کہ گھر میں کوہرام مچ گیا۔ شبیر کا کہنا ہے کہ انسان احساس، مروت اور جذبہ ہمدردی کا دوسرا نام ہے، لیکن کچھ بدبخت ایسے ہوتے ہیں جن کے سینے میں دل کی جگہ پتھر ہوتا ہے۔ ایسے انسان ہر قسم کے جذبے سے عاری اور شفاف ہوتے ہیں۔ لاہور کے علاقے بادامی باغ میں بھی شبیر نے ایک ایسے ہی شادی شدہ شخص کو دیکھا ہے جو کنواری پڑوسن سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ یہ شادی ہوئی کہ نہیں اور کہانی کس موڑ تک پہنچ کر ختم ہو گئی، آپ دیکھیں گے اس کہانی میں جو آپ کو شبیر سنا رہا ہے۔ میں ہوں پارس مسرور اور آپ دیکھ رہے ہیں کوئی دیکھے نہ دیکھے، شبیر تو دیکھے گا۔ شبیر نے ایک دن دیکھا کہ ایک نوجوان لڑکی جو اپنے سر کو ڈھانپے ہوئی تھی اور سمٹی سمٹائی سی نظر آ رہی تھی، پڑوسی کا دروازہ کھٹکھٹا رہی تھی۔ دروازہ 40 سالہ ذیشان نے کھولا تھا۔ ذیشان کو دیکھ کر لڑکی نے چادر کا گھیر بڑھا کر چہرہ چھپا لیا تھا۔ ہاں جی ہے، اندر ہے۔ ارے بھائی پڑوسن ہے،
लड़की तेजी से चेहरा छुपाकर अंदर गई और जीशान उसे कन अखियों से देखने लगा। कौन है जिशान? बाबा कुछ नहीं, पड़ोसन है। आइए आइए आइए। अरे सईदा आओ, जाओ ना, जाके सौदा लेकर आओ। अरे हाँ मैं जा रहा था। अच्छा वो इनके लिए भी कुछ ले आऊं? कभी कभी आती है ये वैसे भी। नहीं, कोई जरूरत नहीं है, मैं तो बस भाभी के पास कुछ काम से आई हूँ। अरे भाई कभी बगैर काम के भी आ जाए करें, पड़ोसियों के भी कुछ हकूक होते हैं। क्यों बेगम? आपको क्या जरूरत पड़ी इतना प्रेम से मशवरा देने की? वैसे सईदा, इनकी बातों को बुरा नहीं मानना, इनको तो आदत है मजाक करने। आओ ना सईदा, बैठो। तुम्हारी शादी होने वाली थी ना? जी जी, बस उसी की तैयारियां चल रही हैं। ये तो अच्छी बात है। तुम जिस घर जाओगी ना, उस घर की किस्मत को बदल दोगी। तुम अभी तक यहीं खड़े हो, तुम गए नहीं सौदा लेने। देखो गैस चली जाएगी, फिर भूखा बैठना पड़ेगा। जाओ जाके सौदा लेकर आओ। जा रहा हूँ। कब जाओगे? जा रहा हूँ। जीशान घर से बाहर निकल गया और सईदा अपनी पड़ोसन के साथ मौजूद रही। सॉरी आप सईदा, मैं तो पूछना ही भूल गई। कोई खास काम था, तुम बता रही थी? भाभी इतनी जरूरी बात नहीं है, पर पता नहीं मुझे बतानी भी चाहिए या नहीं। हाँ हाँ बोलो, बिल्कुल बेफिक्र होके बोलो, क्या बात है? भाभी हो सके तो जिशान भाई को थोड़ा समझाएं। जब भी वो हमारे घर आते हैं कुछ ऐसी बातें कर जाते हैं कि मैं जानती हूँ कि उनकी मजाक की आदत है, लेकिन ओहो सईदा, खुलकर बताओ क्या बात हुई है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। कल अब्बू के साथ घर पे बैठे हुए थे, जब मैंने चाय दी तो प्याली पकड़ने के बहाने। ओहो तुम परेशान नहीं हो, वैसे ही हाथ लग गया होगा, मैं संभाल लूंगी। अब खुश? अब भाभी मैं चलूं? अच्छा कार्ड छप के आ जाएंगे ना तो मैं आपको इनवाइट करूंगी, आपने शादी में जरूर आना है। तुम इतनी अच्छी लड़की हो, अल्लाह ताला तुम्हारे नसीब बहुत अच्छे करे। और वो तुम्हारा भांजा है ना, गोलू भाई, वो तो बहुत ही प्यारा है माशाल्लाह से। जी जी भाभी, वो तो हमारे घर की जान है। मैं सोच रही हूँ शादी के जहेज में उसे भी साथ ही ले जाऊं, उसके बगैर दिल कैसे लगेगा? अरे मेरी बहन, जब पिया का साथ हो ना तो सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। चलो अब जाओ, खुश रहो। अब हाँ, फिक्र नहीं करना। सईदा का पड़ोसी जीशान सईदा से दूसरी शादी के लिए तड़प रहा था। वो यकतरफा तौर पर सईदा को पसंद करता था, इजहार की भौंडी कोशिश भी करता था, लेकिन सईदा ने कभी उससे बात तक नहीं की। सईदा की शादी की तारीख तय हो चुकी थी और जीशान का बस नहीं चल रहा था कि किस तरह ये शादी रुकवा दे। फिर उसने एक दिन सईदा से साफ साफ बात करने का फैसला कर लिया। शब्बीर ने देखा कि जीशान कमरे में टहल रहा था और उसकी बीवी उसे हैरत से देख रही थी। जीशान क्या हो गया, क्यों टहल रहे हो? सब खैरियत तो है? बेगम मैं आपके हुस्न को ताब नहीं ला पा। क्या मतलब? आज तुमने कौन सा सुर्खाब के पर देख लिए उसमें? नहीं, सुर्खाब के पर नहीं देखे भाई, मैं जानता हूँ हुस्न क्या होता है और किसे कहते। बड़ी बड़ी बातें, आज तो बड़ी बड़ी बातें हो रही है। वैसे कौन सी फिल्म देखी है? अब नहीं बेगम, मैंने फिल्म नहीं देखी है, बल्कि मैंने ये महसूस किया है कि हुस्न भी एक नेकी है। किसी खूबसूरत चीज को देखकर इंसान के दिल में मुसर्रत पैदा होती है, इससे दिल को राहत। जीशान उस दिन अपनी बीवी पे कुछ ज्यादा ही मेहरबान था। अच्छा जी, तो मैंने सोचा कि नेकी फैलने से रुकनी नहीं चाहिए। क्या मतलब? मैं समझे नहीं जीशान। वो मतलब ये कि बेगम तुम्हें अंदाजा नहीं है कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। ये फालतू के चोचे लेना बंद करो और साफ साफ बात करो कि बात क्या है। मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हारे जैसी खूबसूरत बीवी एक और लेकर आ जाऊं ताकि हमारी नेकी में और इजाफा हो जाए। अरे मेरी बला से एक क्या 4 ले आओ। देखा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। थोड़ा दिमाग खराब हो गया मिस्टर। वैसे एक बात बताओ, तुमसे एक बीवी संभाली नहीं जा रही, दूसरे की ख्वाहिश, वैसे वो है कौन? बता दो। बात कर लोगी उससे? देखूंगी, नाम बताओ। अरे तुम जानती हो उसे भाई, वो अपनी पड़ोसन सईदा। मुझे अंदाजा था कि तुम्हारी नीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है।
जो तुम हरकतें करते हो ना उसके साथ, मुझे वो भी बहुत अच्छे से मालूम थी, लेकिन मैं तो सोच रही थी कि तुम संभल जाओगे, तुम बाज आ जाओगे, लेकिन तुम बाज बिल्कुल भी नहीं आ रहे हो। निशान, तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आती कि एक कवारी बच्ची, एक शरीफ लड़की जिसकी अगले महीने शादी होने वाली है, तुम उस पर नजर रखे हुए हो, तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती? देखो एक बात याद रखो, अगर तुमने अब उस लड़की के लिए कोई भी बकवास की ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। फिर देखना कि मैं तुम्हारा अंजाम क्या करती हूँ, समझे तुम? देखो तुम कुछ भी करके उसकी शादी रुकवाओ भाई। हाँ, शादी रुकवा देते हैं, मगर मैं क्यों शादी रुकवाऊं? एक काम करो, तुम उसके मियाँ को गोली मार दो, ठीक है? और उस लड़की को भगा के ले जाओ, कैसा? क्या बात की है बेगम आप? इतनी गालियां बकूंगी ना, याद रखोगे। दफा हो जाओ यहाँ से, जाओ। नफरत हो रही है मुझे तुमसे, घटिया इंसान। ज़ीशान के सर पर सईदा सवार थी। उसको हासिल करने के लिए वो कुछ भी कर सकता था। बीवी की झाड़ सुनने के बावजूद उसका दिमाग शैतानी मंसूबे बना रहा था। वो हर हाल में सईदा की शादी रुकवाना चाहता था। फिर उसने एक दिन किसी तरह सईदा के होने वाले शौहर का नंबर हासिल करके उसे सईदा के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप देखिए भाई, आप मुझे नहीं जानते लेकिन मैं आपको जानता हूँ। मैं आपकी होने वाली बीवी का पड़ोसी हूँ, ज़ीशान मेरा नाम। जी फरमाइए, क्यों फोन किया है आपने? भाई असल में कहना यह था कि अगर आपके लिए मुमकिन हो तो सईदा से शादी से इनकार कर दो। वो क्यों? अब मुझे उसका किरदार कुछ मशकूक सा लग रहा है। ओहो, समझ गया, और आपका नाम भी याद आ गया। एक मर्तबा सईदा ने बताया था आपके बारे में। पसंद ही करते हैं ना उसको आप? मैं नहीं तो ऐसा किसने कहा आपको? जी हाँ, आप ही के बारे में। और देखिए मोहतरम, जो हरकत आपने की है ना, उसका बनता तो ये है कि गिरबान पकड़कर बीच चौराहे पर उल्टा लटका कर मारूं। उससे पहले मेरे मुंह से गालियां निकले, तमीज के दायरे में आ जाओ। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ रहिएगा, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। मैं नहीं तो ऐसा किसने कहा आपको? जी हाँ, आप ही के बारे में। और देखिए मोहतरम, जो हरकत आपने की है ना, उसका बनता तो ये है कि गिरबान पकड़कर बीच चौराहे पर उल्टा लटका कर मारूं। उससे पहले मेरे मुंह से गालियां निकले, तमीज के दायरे में आ जाओ। और शर्म नहीं आती तुम्हें एक शरीफ लड़की के ऊपर इल्जाम लगाते हुए? और आएगी भी क्यों? 3 बच्चों के बाप हो और ऊपर से उम्मीदवार भी। ऐसा ही है ना? अच्छा जनाब, गलती हो गई, माफ कर दीजिए। मैंने तो सोचा कि पड़ोसी होने के नाते आपको मैं बता दूं, लेकिन आप तो बिला वजह में नाराज हो रहे हैं। खबरदार, जो तुमने दोबारा मुझे या सईदा को फोन करने की कोशिश भी की। ज़ीशान जिल्लत पर जिल्लत उठाता जा रहा था और अब उसमें इंतकामी जज्बा भी पैदा हो गया। उसने हर हाल में शादी रुकवाने का अहद कर लिया था। सईदा के घर में शादी की तैयारियां हो रही थी। बच्चे बच्चियां शादी ब्याह के गाने ढोल पर गा रही थी कि सईदा भी मेहंदी रचे हाथ लिए लड़कियों के बीच में आकर बैठ गई। नाच गाओ गोरियों, ये घड़ी है मिलन की, ये सजन से सजन की। अरे सईदा, तुम गाना क्यों नहीं गा रही हो? तुम्हारी तो अपनी शादी है यार। नहीं भाभी, मुझे कहाँ गाना आता है, आप लोग ही गाए। भाभी वो अयान नहीं दिखा है। अभी तो यहीं था बेटा, देखना कहीं अयान बाहर तो नहीं निकल गया। जी जी भाभी, देखता हूँ यहीं कहीं होगा। नहीं होगा, गली में गया होगा।
चलो ना तुम तो। चलो हाँ चलो। पतंग बहुत सजनाते, पतंग बाबल माते, आंखों आंखों में उलझी दो, जगह पे जा दो मच गया शोर। शादी के सिर्फ 3 दिन पहले 5 साला अयान, जो सईदा का प्यारा सा भांजा था, घर से ऐसे गायब हुआ कि घर में कोहराम मच गया। पुलिस में अयान की गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज करा दी गई। पड़ोसी जीशान भी सब घर वालों के साथ उसे ढूंढ रहा था। लेकिन एक रोज बाद पुलिस ने शक की बुनियाद पर जब सईदा के पड़ोसी जीशान से पूछगछ की तो इंकशाफ हुआ कि उसने सईदा की शादी रुकवाने के लिए उसके 5 साला भांजे को कत्ल करके झाड़ियों में फेंक दिया था। ये है जीशान की माँ, जो अपने बच्चे की लाश देखने अस्पताल जा रही थी। पता ही नहीं चला, घर खेल रहा था, अचानक ही बाहर निकला। अम्मी घर थे, अब्बू, मेरे बच्चे घर थे, सब घर थे। 20-25 मिनट के अंदर अंदर पता नहीं चला। मगरब से पहले ही हमने इसे संभाल लिया था, असर के बाद मगरब से पहले अजान से पहले संभाल लिया था। ढूंढने लगे उसी एरिया में मेरा बेटा था, उसी एरिया में मिला है। कभी किसी से कोई दुश्मनी थी या किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी। हम लोग तो गरीब बंदे हैं। अब इसका बाप भी सुबह निकल जाता, मैं भी निकल जाती, रात 10 बजे काम करके आते हैं। हमारी किसके साथ दुश्मनी होनी थी। ये मंजर देखकर शब्बीर का दिल दहल गया। बच्चे को खराश भी आ जाए तो माँ का दिल दहल जाता है। यहाँ तो मासूम को बेकसूर कत्ल कर दिया गया था। अंदाजा लगाइए कि जब माँ ने अपने कमसिन बच्चे की गला कटी लाश देखी होगी तो उस पर क्या गुजरी होगी। सफा कातिल सईदा का पड़ोसी शादी रुकवाने में कामयाब हो गया था, लेकिन जिस मकसद के लिए उसने ये घिनौना फेल किया उसमें कामयाब कभी नहीं हो सकेगा। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। तालीम इंसान का बुनियादी हक है, लेकिन गुर्बत की वजह से लाखों बच्चे मयारी तालीम के हुसूल से महरूम रह जाते हैं। ऐसे में सरकारी और निजी सतह पर भी गरीब बच्चों को मुफ्त अच्छी तालीम देने के प्रोग्राम बनते रहते हैं, जो थोड़े अरसे बाद चलकर बंद हो जाते हैं। लेकिन सरगोधा डिवीजन की कमिश्नर अपने बचपन के ख्वाब की तकमील के लिए कोशा है। ये जो क्लासों में साफ सुथरे हंसते मुस्कुराते बच्चे दिखाई दे रहे हैं, इनका ताल्लुक गरीब घरानों से है। खुशकिस्मती से प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन और डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी के दरमियान वायदे की एक याददाश्त पर दस्तखत हुए, जिसके तहत गरीब बच्चों को इलाके के अच्छे स्कूलों में मुफ्त तालीम हासिल करने के मौके फराहम किए जाएंगे। इनको किताबें और बस्ते भी दिए जाएंगे। शब्बीर ने मुआहदे की इस तकरीब को देखा तो इसमें इलाके के सरकारी अफसरान के अलावा बच्चे और उनके वालिदैन भी मौजूद थे, जिन्हें किताबें और बस्ते दिए जा रहे थे। ये है वो मनाज़िर। शब्बीर का कहना है कि सरकारी इदारों और अफसरों के बारे में एक आम तासुर ये है कि ये लोग महज ज़बानी जमा खर्च से काम लेते हैं, लेकिन कोई ठोस इकदाम नहीं करते। लेकिन बाद सरकारी अफसरान दिलो जान से अपना काम करते हैं और लोगों के लिए सहूलतें फराहम करते हैं। शब्बीर ने जब इस मुफ्त तालीमी प्रोग्राम के बारे में इलाके की कमिश्नर से बात की तो उन्होंने इस तरह की गुफ्तगू की। ये क्वालिटी एजुकेशन की तरफ उन्हें ले जाने का है, जिसके लिए हमने ये प्रोजेक्ट कंसीव किया कि हम प्राइवेट स्कूल्स के साथ हम लोग राब्ते में आए। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के इस वक्त हमारे साथ उनके प्रेसिडेंट मौजूद हैं, जो इंतहाई उन्होंने हमारे साथ कोऑपरेशन का मुजाहरा किया। हमारे सीईओ एजुकेशन, हमारे डिप्टी कमिश्नर, इन सब के साथ मिलकर आज हमने एक ऐसा प्रोग्राम तरतीब दिया है जिसमें 5 इंतहाई डिजर्विंग बच्चे, जिनमें यतीम बच्चे भी शामिल हैं, वो आज उन स्कूल्स में गए हैं, उन लीडिंग स्कूल्स में गए हैं जिले के, जिसको वो शायद अदरवाइज अफोर्ड नहीं कर सकते। इनकी कंप्लीटली ट्यूशन फी माफ कर दी गई है। इनके साथ हमने एक इन राइटिंग MOU साइन किया है, जिसमें 10 सालों के लिए इन बच्चों की एजुकेशन प्राइवेट स्कूल की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। इनके एक्सपेंसेस का भी अरेंजमेंट किया गया है और ये बच्चे इंशाल्लाह ताला ये वो होंगे कि ये अपने खानदानों को पॉवर्टी की साइकिल से बाहर
जहन निकाल सकेंगे क्वालिटी एजुकेशन के थ्रू इंशाल्लाह। हमने ये भक्कर से स्टार्ट लिया था, ये एक इंतहाई यहाँ पे पसमानदा कुछ इलाके हमारे पास मौजूद हैं, इसीलिए हमने यहाँ से स्टार्ट लिया क्योंकि यहाँ पे बच्चियों की एनरोलमेंट भी कोई बहुत ज़्यादा इनकरेजिंग नहीं थी। और इसके बाद हम अपने तमाम बाकी अजला में भी इंशाल्लाह ताला ये प्रोग्राम इसके ऊपर ऑलरेडी काम शुरू हो चुका हुआ है और अब साइमल्टेनियसली उनको भी हम रोल आउट करने जा रहे हैं इंशाल्लाह। शब्बीर ने वालिदैन और दीगर अफसरान के तासुरात भी जानने की कोशिश की थी। बहुत ठीक है, मेरा ख्वाब है कि मैं बड़े स्कूल पढ़ाऊँ, लेकिन अपने अखराजात की वजह तो मैं अपनी बच्ची को नहीं पढ़ा सकती। खुदा भला करे जिन्हें ये काम किया है, ये स्कीम चलाइए, अल्लाह ताला उन्होंने इतू ज्यादा देवे। मेरी अल्लाह सुनी है, इंशाल्लाह मेरी बच्ची हूँ समार्ट स्कूल वैसी मेरे ख्वाब है जरा मेरा पूरा थी। शब्बीर ने सरगोदा डिवीजन में गरीब बच्चों को मुफ्त अच्छी म्यारी तालीम का मौका फराहम करने पर प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन और कमिश्नर को सराहा है। शब्बीर की दुआ है कि ये काम पूरे मुल्क में होना चाहिए और ये कोई मुश्किल काम भी नहीं है, सिर्फ पाकिस्तान को पढ़ा लिखा पाकिस्तान बनाने की नीयत चाहिए। इस तरह के इक़दामात से गरीब और महरूम तबका भी तालीमी मैदान में आगे बढ़ने के बाद मुल्क और कौम का अजीम सरमाया बन सकता है। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। यहाँ हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे इसी वक्त सिर्फ एक्सप्रेस न्यूज पर। देखना मत भूलिएगा, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। अगर आप अपने इर्द गिर्द होने वाले किसी गैर मामूली वाक़े से शब्बीर को आगाह करना चाहते हैं तो SMS करें SAB लिख कर स्पेस दें और अपना मैसेज अपने शहर और नाम के साथ 247 पर भेज दें। फैक्स करने के लिए हमारा नंबर है 021-3580-3820। खत लिखने के लिए हमारा पता है 5 एक्सप्रेस वे ऑफ कुरंगी रोड, कराची। एक्सप्रेस न्यूज, शब्बीर तो देखे।